Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of oscillations and waves, we will discuss about factors affecting the velocity of sound. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे के आज के हमारे इस लेक्चर में हम ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा करेंगे। So, in the current lecture, we will discuss about effect of pressure, effect of temperature, and the effect of molecular weight. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के तौर पर दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव तथा आणविक भार का प्रभाव इसके बारे में चर्चा करेंगे। So first one is effect of pressure on the velocity of sound wave. तो सबसे पहले ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव। So effect of pressure या दाब का प्रभाव। Velocity of sound in air is given by v equal to a square root of gamma p upon rho. तो वायु में ध्वनि का वेग v equal to root of gamma p upon rho होता है। Here gamma is the ratio of two specific heat that is Cp upon Cv. यहाँ गामा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। P is pressure, P दाब है एंड रो इज डेंसिटी तथा रो घनत्व है। Now this formula shows that the velocity of sound depends on pressure, but in reality it does not depend on pressure. तो यह सूत्र यह दर्शाता है कि ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, परंतु वास्तविकता में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। For 1 mole of gas, the gas equation is, एक मोल गैस के लिए गैस समीकरण है PV equal to RT. This is our ideal gas equation. यह हमारी आदर्श गैस समीकरण है। Here P is pressure, V is volume, R is gas constant and T is absolute temperature. यहाँ P दाब, V आयतन, R गैस नियतांक तथा T परम ताप है। If M is molecular weight of gas, यदि M गैस का आणविक भार हो तो rho equal to M upon V. Here rho is density, M is molecular weight and V is volume. So rho is M upon V. यहाँ rho गैस का घनत्व है, M आणविक भार है तथा V आयतन है। Now from this equation V equal to M upon rho. So if we substitute the value of V from this equation to this equation, यदि हम V का यह मान यहां से इस समीकरण में रखें तो हमको क्या मिलेगा? P M upon rho equal to RT and from here P upon rho equal to RT upon M. So P upon rho is equal to RT upon M. So if we substitute the value of P by rho from here to here, then यदि हम P upon rho का मान यहां से यहां पर रखें, then V क्या आ जाएगा? V equal to root of gamma RT upon M. Thus, at a given temperature, the velocity of sound is independent of pressure. अतः एक दिए गए ताप पर ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, because R is gas constant, T is absolute temperature. तो हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है या ताप का एक निश्चित मान लिया है, and M is molecular weight which is also constant for a particular gas. तो M का मान भी
किसी गैस के लिए नियत होगा। इट मीन्स V डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। अतः वायु में ध्वनि का वेग या ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। नाउ सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ताप का प्रभाव। So इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। अब इस फॉर्मूला से क्लियर है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। So V is directly proportional to square root of absolute temperature. It means the velocity of sound in a gas is directly proportional to the square root of the absolute temperature. अतः स्पष्ट है कि गैस में ध्वनि का वेग परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। If V naught is velocity of sound in air at 0 degree centigrade or at 273 Kelvin, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 273 केल्विन ताप पर वायु में ध्वनि का वेग V naught हो and Vt is velocity of sound in air at T डिग्री सेंटीग्रेड, तथा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में ध्वनि का वेग Vt हो तो Vt upon V naught is equal to square root of T upon T naught. Here capital T is the temperature on absolute scale and T naught is 273 Kelvin, that is 0 degree centigrade. So Vt upon V naught की वैल्यू हमको अंडर रूट T upon T naught मिल गई है। नाउ T को हम 273 प्लस स्मॉल t से रिप्लेस कर देते हैं एंड T naught को हम 273 से रिप्लेस कर देते हैं। तो Vt upon V naught क्या आ जाएगा? Vt upon V naught इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 273 प्लस T अपॉन 273। सो 273 को इसको और इसको दोनों में डिवाइड कर दो तो Vt अपॉन V naught आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस T अपॉन 273। सो यहां से अगर V naught को हम यहां पर ट्रांसफर कर दें तो Vt क्या आ जाएगा? Vt इक्वल टू V naught स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस T अपॉन 273। Now, root of 1 plus T upon 273 can be replaced by 1 plus T upon 273 पावर हाफ। तो इस रूट को हमने पावर हाफ की फॉर्म में लिख दिया है। नाउ ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला है बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। तो यदि हम द्विपद प्रसार का उपयोग करें तो ये 1/2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो Vt इक्वल टू V naught इंटू 1 प्लस हाफ इंटू T अपॉन 273, क्योंकि 1 प्लस एक्स रेज टू एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है। तो यहां पर हमने T की हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिया है या T की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ दिया है। नाउ 2 इंटू 273 546 हो जाएगा। सो Vt इक्वल टू V naught इंटू 1 प्लस T अपॉन 546 और इस V naught को अगर हम अंदर ले लें so Vt इक्वल टू V naught प्लस V naught अपॉन 546 into T। If the velocity of sound in air at NTP is 332 मीटर पर सेकेंड, यदि सामान्य ताप तथा दाब पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो हम V naught की जगह 332 रख देते हैं। सो Vt क्या हो जाएगा? V naught प्लस 332 अपॉन 546 इंटू T एंड 332 अपॉन 546 इज 0.61। सो Vt इक्वल टू V naught प्लस 0.61 इंटू T। तो किसी भी ताप पर वायु में ध्वनि का वेग हमारा ये होगा जहां V naught का मान 332 मीटर पर सेकंड है। Thus, the velocity of sound in air increases by 0.61
मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अतः वायु में ध्वनि का वेग प्रति एकांक डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। तो जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज होगी vt की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अतः ताप के साथ वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है और वो कितना इंक्रीज होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर या प्रति एकांक डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम ताप बढ़ाएं तो वेग का मान 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ेगा। नाउ इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार का प्रभाव। सो इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, नाउ ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम, और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m. The velocity of sound in a gas is inversely proportional to the square root of the molecular weight of gas. अतः वायु में ध्वनि का वेग गैस के आणविक भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। If mh is molecular weight of hydrogen, यदि हाइड्रोजन का आणविक भार mh हो, and MO is the molecular weight of oxygen, तथा MO ऑक्सीजन का आणविक भार हो तो MO अपॉन MH इक्वल टू 32/2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है तथा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है। सो MO अपॉन MH इक्वल टू 32/2, तो 2 से 32 को कैंसिल करोगे तो यहां पर हमको 16 मिल जाएगा। इट मीन्स MO अपॉन MH इक्वल टू 16। नाउ फ्रॉम हियर VH अपॉन VO इक्वल टू रूट ऑफ MO अपॉन MH, एंड MO अपॉन MH 16 आया है तो यहां पर रखोगे तो VH अपॉन VO हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, एंड 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमको 4 मिलता है। So VH upon VO equal to 4. It means VH equal to 4 times VO. So VH equal to 4 times VO. It means the velocity of sound in hydrogen is 4 times the velocity of sound in oxygen. अतः स्पष्ट है कि हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग ऑक्सीजन में ध्वनि के वेग का 4 गुना होगा। सो हियर वी एंड आवर सेशन। इन द करेंट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो गुड बाय।